जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लासिकल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1 और हम कंटिन्यू करेंगे ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट। तो आज का जो आर्टिकल है हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और उसके जो पार्टिकल्स हैं, हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हम इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फाइंड करेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अगर कोई एक सिस्टम है तो हम देखेंगे कि उस सिस्टम के लिए जो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है वो इक्वल आएगा हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी से दैट अ सिस्टम we performing work equal to from point 1 to point 2, and already we know that the work is equal to F into displacement, where F is force on ith particle, because we are choosing a model particle, the ith particle. And if we move further, we know that this displacement can be replaced with the equation S is equal to Vt. And we say that by putting this value here, we have integral of force into velocity into time, where time is changing from point 1 to point 2. Further, we can say that using the value of force, as we know that force is equal to F is equal to ma, where a is acceleration, and we can use the value dv by dt. Putting this value into this equation, we have integral of mass dv over dt into v dt. This integral can be solved. I try my best to solve this here. If you can see this solution here, we have acceleration is equal to second order derivative of displacement, or we can say that velocity derivative. Simply we say that acceleration is equal to dv by dx into dx by dt. Simple, by using chain rule we can say that dv over dx into dx by dt. Simply we substitute the value of dx by dt, and we have velocity dv over dx. We can use the value of v here. Say we have v equal to derivative of this term. If we differentiate velocity with respect to also velocity, we have simply v is equal to v. So I will substitute the value of velocity equal to this term, and we have the derivative of velocity into derivative with respect to velocity into half v square dv over dx, and simply we cancel out these two terms. Which two terms? We can cancel out this dv with this dv, and we simply have acceleration is equal to d by dx half v square, and this cancel term, and simply we have acceleration is equal to d by dx into half v square. So we can put d by dt into the product of velocity with its velocity. We will have, solving by this term using vector product here, we will have half integral of mass into d over dt v square into dt. So you can say that taking all terms into integral and solving this, we simply have a simple relation, and we can say that after applying the limits, where limits are from point 2 to point 1,
you can say that when ith particle at one instant it's at 0.2 and when at an instant it's 0.1, you can solve this value to find this value. तो हमें देखना ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बताता है हमें ये बताता है कि अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो वो इक्वल आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? उस ith पार्टिकल की। अगर आप कहें कि आप पार्टिकल जो कि ith पार्टिकल है उसके ऊपर वर्क करते हैं कि उसको आप 0.1 से 0.2 तक मूव करवा रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा उस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम 0.2 टू 0.1। तो ये हमारे पास था किसी भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये हमने देखा कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे पास ये जो सिस्टम है या ये जो मोशन हो रही है पार्टिकल्स की सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग है, जो कि आप स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रही है। और अब हम देखें डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है और ये थोड़ा सा ट्रिकी आर्टिकल है तो आपने कोशिश करनी है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ आ जाए। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हम इनको समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू से दैट वी हैव अ रिजिड बॉडी along x and y coordinate you have a rigid body and you choose a mass, you say that mass of a ith particle in a rigid body। और आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जब इस रिजिड बॉडी की किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस मैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होगी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर ये मेरे पास एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, मेरे पास ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है और कोई यहाँ पे मैस है ith मैस और वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हमने इस पे फोर्स लगाई और अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये है कि अब हम इसकी पोजीशन कुछ न्यू कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि एक्स प्राइम है और वाई प्राइम है। तो जब हम इस रिजिड बॉडी के मैस जो ith मैस है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके न्यू कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से डिफाइन करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज़ हमारे माइंड में आती है जो कि है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली तो हम जो वर्क करते हैं वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि आप जिस तरह अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ या डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और उसके अंदर जो है मैसेज अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज मूव कर रही है जो कि इंट्रिंसिकली मूव कर रही है तो उसका रियल लाइफ पे रियली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं कहता हूं ये वर्चुअली तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मगर रियली इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। A virtual displacement of a system refers to a change in the configuration of the system। ये जो सिस्टम है, अब सिस्टम किस चीज़ का, रिजिड बॉडी का जो कि MI है उसका मैं सिस्टम जब कंसिडर करूंगा तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी एज द रिजल्ट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी इन्फिनिटी